So, good morning, all of you. So, today we are going to start the new topic, that is thrust and pressure. Thrust and pressure. So, first of all, what is called thrust? Thrust किसको कहते हैं? Thrust is a force which is acting normally on the surface. It is a force which is acting normally on the surface. So that is called thrust. Second point related to thrust is it is a vector quantity. क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. And since it is a force, so its SI unit will be Newton. SI unit of thrust is Newton. Now, these are the points related to thrust. Now, the next topic we have to study is what is called pressure. What is called pressure? So, pressure is the thrust acting per unit area. It is the thrust acting per unit area. That is called pressure. Now, its formula. The formula of pressure is force or thrust per unit area. In place of thrust, you can write force also. Thrust per unit area, and thrust is denoted by F and area by A. So pressure P is equal to F by A. This is the formula of pressure. Now we have to discuss its SI unit. What is its SI unit? Force unit, SI unit is Newton, and area हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर. तो SI unit will be Newton per meter square. Newton per meter square. And 1 Newton per meter square is said to be 1 Pascal. 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal, denoted by capital P and small a. But when you will write in words Pascal, it should be in small letter.
Now we have to define what is Pascal. So pressure is said to be 1 Pascal when a force of 1 Newton is acting on a surface area of 1 meter square. So pressure is said to be 1 Pascal. We are defining now here Pascal. Pressure is said to be 1 Pascal when a force of 1 Newton acts on the surface area of 1 meter square. Then it is said to be 1 Pascal. तो पास्कल भी हो गया डिफाइन. Now there are some other units of pressure. कुछ और यूनिट्स भी है, वो भी थोड़ा देख लो. अदर यूनिट्स. अदर यूनिट्स में है, सबसे पहले है बार, BAR, and 1 bar is said to be 10 to the power 5 Pascal. 10 to the power 5 Pascal. Second is millibar. ये सब स्मॉलर यूनिट्स हैं. millibar 10 to the power 2 Pascal. तीसरा है तुम्हारा ATM. ATM का मतलब हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग ATM में मेजर करते हैं. उसका शॉर्ट फॉर्म है which is said to be 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. So these are some other units of pressure. Bar, millibar, ATM. Now we know that pressure P is equal to force per unit area. ये तो पढ़ लिए हैं. So if F is constant, if F is kept constant, then what will be the relation between P and A? तो अगर हम F को कांस्टेंट कर दें, then P is inversely proportional to A when F is equal to constant. तो प्रेशर और एरिया के बीच का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली हो जाएगा. यानी कि मोर विल बी द एरिया, लेस विल बी द प्रेशर, और लेस विल बी द एरिया, मोर विल बी द प्रेशर. तो हम ये लिख सकते हैं मोर एरिया लेस प्रेशर एंड वाइस वर्सा. यानी कि इसका अपोजिट भी ट्रू. तो यहां पर ध्यान रखना है कि तुम्हारा F कांस्टेंट होना चाहिए. अब एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं.
ये एक सरफेस है, बुक है यहाँ पर, और इस पर हमने डस्टर को रख दिया. दिस इज द डस्टर विच इज केप्ट ऑन दिस बुक. ठीक है. नाउ इट इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन द बुक. ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. लेकिन अगर इसी डस्टर को इफ वी पुट इट इन सम डिफरेंट पोजीशन, इसको ऐसे ऐसे खड़ा कर दिया लाइक दिस, तो इन दिस केस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द डस्टर विल बी द सेम. चेंज क्या हुआ? एरिया चेंज हुआ. और जब एरिया चेंज हुआ तो व्हाट विल चेंज? प्रेशर विल आल्सो चेंज. So the area of the duster in contact with the book is less, so the pressure exerted will be more. But in this case, the area of the duster in contact with the book is more, so the pressure exerted by the duster on the book will be less. तो यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है जिसके कारण प्रेशर भी चेंज हो रहा है. बट वन थिंग इज नॉट चेंजिंग, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द डस्टर. फोर्स तुम्हारा यहाँ पर कांस्टेंट. Now the next we have to study some examples of pressure. More area less pressure, and less area more pressure. Examples. तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं. लेस एरिया मोर. So first example we are taking more area and less pressure. मोर एरिया लेस प्रेशर, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं. तो सबसे पहला है हम लिखेंगे द रियर व्हील्स ऑफ द बस एंड ट्रक्स आर डबल्ड. जो बस और ट्रक का पीछे का जो टायर होता है वो डबल्ड होता है और आगे का जो टायर होता है वो सिंगल होता है. ऐसा किस लिए? बिकॉज इन ट्रक्स द वेट is loaded on the back side, so to create less pressure on the tire, the area of the tire is made wider by putting double tires. So rear wheels of the bus and trucks are doubled. rear का मतलब होता है back. rear wheels of the bus and truck are doubled. एक एग्जांपल ये ले लिए. सेकंड एग्जांपल इज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स और डैम्स इज मेड वाइडर. कोई भी जब बिल्डिंग बनता है या डैम कंस्ट्रक्शन होता है उसका जो बेस होता है दैट इज मेड वाइडर so that the pressure exerted at the bottom of the dam or building will be less and it will be safe. The foundation of a building or dam is made wider
Third example you can take, railway tracks are provided with wide sleepers. Railway tracks are provided with wide sleepers. पहले वुडन स्लीपर्स होता था. नाउ दैट वुडन स्लीपर्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कंक्रीट स्लीपर्स. जैसे ये तुम्हारा ट्रैक है, ये तुम्हारा ट्रैक है और इसके बीच में यू विल सी दैट ये स्लीपर्स है, कंक्रीट स्लीपर्स. इसी को कहते हैं स्लीपर्स. तो दिस इज द ट्रैक. ये तुम्हारा हो गया ट्रैक made up of iron, and the track is very narrow. So when the train moves on this narrow track, what happens? The pressure exerted on this track will be more. बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा because it is narrow. तो उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए these concrete sleepers are provided at the bottom. तो जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस ट्रैक्स पर वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस स्लीपर्स में, एंड विच प्रिवेंट्स द ट्रैक्स फ्रॉम प्रेसिंग डाउन इनटू द अर्थ. अंदर नीचे सिंक नहीं करेगा. सो द प्रेशर एक्सर्टेड on the track will be less because it is distributed on the sleepers. So these are some examples. There are many more examples. Few examples I have given you. Now another example we are going to take, less area, more pressure. अब एरिया को कम कर देते हैं. तो when area will be less, the pressure exerted will be more. तो पहला एग्जांपल है, all cutting instruments have sharp edges. जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक नाइफ, सीजर, ब्लेड, एक्स, जितने भी काटने वाले चीजें सबका जो एजेस होगा दैट विल बी वेरी शार्प, मतलब बहुत ही छोटा एरिया होगा. सो दैट व्हेन एन एप्पल इज कट with a knife, the area of contact of the knife with the apple is less, due to which the pressure exerted on the apple will be more. And when the pressure exerted on the apple will be more, what will happen? The apple can be easily cut. So less will be the area, more will be the pressure. So जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा उसका एजेस बहुत शार्प होगा ताकि प्रेशर ज्यादा लगे. Second is nails and pins have pointed ends. कांटी या पिन जो भी होगा उसका जो इंड्स होगा, एक इंड जो होगा that will be very pointed, so that the area of contact with the nail or the pin with the wall or with the wood will be less, so the pressure exerted on the wall or wood will be more, and the nail or the pin can easily go inside the wall or wood. तो जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर. So these were examples of less area, more pressure.
नाउ वी आर कमिंग टू अ न्यूमेरिकल पार्ट। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग बना लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। A wooden block a wooden block has a mass of 5 kg and its dimension are 40 centimeter into 20 centimeter into 10 centimeter। ये इसका डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। कैलकुलेट, टू थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहला मैक्सिमम प्रेशर और बी मिनिमम प्रेशर exerted by the block when kept on the table। maximum pressure and minimum pressure exerted by the block when kept on the table। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए एरिया का मिनिमम होना जरूरी है। फॉर मैक्सिमम प्रेशर एरिया शुड बी लेस। तो मैक्सिमम प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया। मेन पॉइंट तुम्हारा यहीं पर है, फोर्स बाय एरिया, लेकिन हमने यहां लिखा है मिनिमम एरिया, क्योंकि जब तक एरिया मिनिमम नहीं होगा प्रेशर मैक्सिमम नहीं होगा। अब यहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg मास इनटू ग्रेविटी। नाउ हियर g यू कैन टेक 10, g अपने हिसाब से 10 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो 5 यहां लिख सकते हैं m इंटू जी बाय मिनिमम एरिया। तो मिनिमम एरिया यहां पर ध्यान देना है क्वेश्चन में, मिनिमम एरिया के लिए यू हैव टू टेक 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर सरफेस, 20 इंटू 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड मास इज गिवन, मास कितना दिया हुआ है 5 kg and g is 10 by 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इस चीज को ध्यान में रखना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट योर एसआई यूनिट, इसको मीटर स्क्वायर में लाना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो we know that 1 centimeter square is equal to 10 to the power minus 4 meter square। ये चीज को ध्यान में रखना है, दिस इज द कन्वर्सन। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय कितना 10,000
10,000. So this will be written as 50 into 10 to the power 4 by 200. ये 10 टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में है, ये चला जाएगा तुम्हारा न्यूमरेटर में इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो 10 टू द पावर 4 ऊपर चला गया। नाउ आफ्टर डिवाइडिंग इट you will get 2500 पास्कल। इतना आंसर आना चाहिए आफ्टर डिवाइडिंग इट, 2500 पास्कल। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस द प्रोसेस विल बी द सेम, खाली यहां पर हो जाएगा फोर्स बाय मैक्सिमम एरिया। तो यहां पर मैक्सिमम एरिया कौन सा लेंगे, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। इस चीज को ध्यान रखना, 40 इंटू 20, देन ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम एरिया। तीनों नहीं लेना है, तीनों लेंगे तो यू विल गेट वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए, वी हैव टू गेट एरिया। So second part is minimum pressure force by maximum area, which will be written as 5 into 10 by, now this will be removed and now you have to take 40 centimeter into 20 centimeter. तो 40 centimeter into 20 centimeter. So 50 divided by 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में लाना है तो डिवाइड कर देंगे 10,000 से। तो 50 by 800 डिवाइडेड बाय ठीक है, 10,000 से डिवाइड कर दिया। तो नाउ यू विल गेट 50 into 10 to the power 4 by 800 and after solving you will get 625 पास्कल। इतना आंसर आना चाहिए, 625 पास्कल।